हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड डन। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके पेपर में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं पैराग्राफ की ओर। प्रश्न नंबर 121 से लेकर 128 तक की इस पैराग्राफ से लिए गए क्वेश्चंस हैं। चलते हैं पैराग्राफ को एक मैं जनरली रीड कर देती हूँ, जिससे आप सभी को ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ क्या कहता है कि द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज़ द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन मिथिला रीजन in the village around Madhubani, Bihar. Madhubani literally means a forest of honey. This style of painting has been traditionally used by the women of the region. Through today, men are also involved to meet the demand. The work is done on freshly plastered mud wall. For commercial purpose, it is now being done on paper, cloth, etc. The paintings are basically of religious nature. They are done in the special room of their home, in the puja room, ritual area, bridal room, etc. on the main village walls, etc. for ceremonial or ritualistic purpose. The women offer prayers to a deity before starting the work. Figures from nature and mythology are adapted to suit their style. The theme and design widely painted are the worship of Hindu deities such as Krishna, Rama, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, sun and the moon, Tulsi plant, court scene, wedding scenes and other social events taking place around them. Floral, animal, bird motif, geometrical designs are used to fill up the gaps. There is hardly any empty space in this style. Cotton wrapped around a bamboo stick from the brush. The colors applied are prepared by the artist. The skill is handed down the generations, and hence the traditional design and patterns are widely maintained. It is believed that the genesis of Madhubani painting came about when King Janaka asked for painting to develop for his daughter Sita's wedding. गाइस, ये था पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये क्या होते हैं, कई बार ये सारे क्वेश्चंस और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमें ज़रूर रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 121 पर। Question number 121 says that Madhubani paintings are no longer done exclusively by women on wall. First example is, as men are better painter, as paper is cheaper. Third option says that because cloth is more durable, and the डी ऑप्शन सेज दैट टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड। जैसी डिमांड होती है वैसी यहाँ पर पेंटिंग्स अवेलेबल कराई जाती हैं, होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 says that Madhubani paintings are essentially of religious nature when they are done. First option says that on the village wall. Second option is using figure from nature. Third option is in the puja room, and the next option is the bridal room. 122 का जो right answer होगा in puja room is the right answer. Next question number 123, that is, see, these paintings become secular when they depict. First option says that Tulsi plant. Next, wedding scenes. Third, court scenes. Fourth option is worship of Saraswati. Then question number 123 is
इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा कोर्ट सीन्स, यानी ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, और क्वेश्चन नंबर 124 says that a Madhubani painting shows only. First option says that flower and plant. Second है geometrical design. Third one a balanced portrayal of all of them. D option is Hindus deities. तो 124 का जो राइट आंसर होगा वो होगा balanced portrayal of the ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो ये कहता है कि द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज़ लर्न इन द फर्स्ट ऑप्शन से इज़ दैट फैमिलीज एट होम। नेक्स्ट है होम ऑफ रिनोड आर्टिस्ट। थर्ड ऑप्शन इज़ आश्रम ऑफ मधुबनी। थर्ड डी ऑप्शन इज़ स्कूल ऑफ आर्ट। तो 125 का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। फैमिलीज़ में, घरों में स्टार्ट हुई थी, लर्न किया जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं 126 के लिए। तो फ्लोरल इज़ अ एग्जेक्टिव डेराइव्ड फ्रॉम नाउन। फ्लोरल और ऑरल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम नाउन। तो यहाँ पर क्या है, पहला है ईयर, दूसरा है आई, थर्ड ऑप्शन इज़ माउथ एंड डी ऑप्शन इज़ मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईयर, ये इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर, और ये कहता है डैश ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स। तो इसमें क्या भरेंगे, प्लास्टर्ड का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन से इज दैट इन्फिनेटिव, सेकेंड इज कॉल्ड participle, थर्ड ऑप्शन इज़ पार्टिकल एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ जिरंड। तो 127 का जो राइट आंसर होगा, आप जानते हैं प्लास्टर्ड क्या है, तो ये पार्टिसिपल है, तो ये यहाँ पर बी वाला आंसर इज़ राइट हो, यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। तो ये कहता है द वर्ड जीनेसिस मीन्स द सेम। इसका मीनिंग, सेम मीनिंग क्या है, यहाँ पर कौन सा वर्ड बता रहा है। फर्स्ट है ओरिजिनल, सेकेंड इज स्प्रिट, थर्ड इज ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज बर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा बर्थ। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। आइए चलते हैं 129 से 143 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं यहाँ पर, और जो ये हमारा लिया गया है। तो ये 129 कहता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट। तो लैंग्वेज क्या नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सिम्बॉलिक, सेकेंड ऑप्शन इंस्टिक्टिव, थर्ड ऑप्शन सोशल, और डी ऑप्शन कहता है आर्बिट्री। तो यहाँ पर जो 129 का सही आंसर है वो क्या है, इंस्टिक्टिव, यानी कि लैंग्वेज को आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है when language developed is a deliberated and conscious effort. Languages, first option says that acquired, next option says that honed, third option says that brushed up, and fourth option is learned. तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लर्न। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर, जो कि हमारा पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको स्पेशली रीड करते हैं पहले। व्हाट इज़ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज। अगर टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो टास्क का क्या मीनिंग होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोजेस लर्नर टू लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन इज सेज दैट अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल लर्नर टू डू एन एक्टिविटी। सी ऑप्शन सेज दैट अ पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट टू डू दियर चिल्ड्रंस होमवर्क। तो यहाँ पर और डी ऑप्शन कह रहा है अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स टू डू इन द क्लासरूम। 131 का ए वाला जो आंसर है वो सबसे सही वाला आंसर होगा, अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोज लर्नर्स टू लैंग्वेज। यहाँ पर जो पीस है वो क्या है, काम करेगा किसकी तरह, जो कि एक्सपोज लर्नर की यानी कि लर्नर की लैंग्वेज को जो एक्सपोज करेगा उसकी तरह यहाँ पर ये टास्क क्या करते हैं, काम करते हैं कि लर्नर ने क्या सीखा है वो चीज़ यहाँ पर एक्सपोज होगी। ये हमारा इसका मेन एम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो ए वाला आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर, और ये कहता है ट्रेवेलॉग इज़ अ जेनर ऑफ।
तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट पोइट्री, सेकेंड वन इज क्रिटिसिज्म, सी ऑप्शन सेज दैट बिब्लियोग्राफी एंड डी ऑप्शन सेज दैट लिटरेचर। तो क्या है ये 132? तो ये हमारा क्या है? लिटरेचर है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 133, इट सेज दैट the most important aspect of an effective language classroom is to provide learner with an opportunity to। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? यानी इफ़ेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज क्लासरूम की बात करें तो ये लर्नर को कौन सी अपॉर्चुनिटी देगी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इमिटेट, सेकेंड इज़ इंटरेक्ट, सी इज़ इंटरफेस एंड डी इज़ एसेस। तो ये क्या करेगी? 133 का जो राइट आंसर होगा वो क्या करेगी? इनको इंटरेक्शन में हेल्प करेगी, इंटरेक्शन का मौका देगी, जो यानी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? इंटरेक्ट होने का, यानी यहाँ पर बी वाला आंसर इज़ राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 134, और ये क्या कहता है? अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज़ प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, सी शुड फोकस ऑन। इस तो अगर कोई इंटरेक्टिव लिसनिंग कर रहा है तो वो किस चीज़ पे फोकस करेगा? फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सेकेंड वन इज़ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, थर्ड ऑप्शन सेज दैट लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस एंड इनोवेशन, गाइस इंटोनेशंस। तो ये यहाँ पर लिखा है। तो डी ऑप्शन कहता है लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशंस। तो इन चार ऑप्शंस में से किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे? तो ये हमारा ये जो हमारा है कि लर्निंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ये हमारा इस पर सबसे ज़्यादा फोकस देंगे, ध्यान देंगे। तो ये ए वाला आंसर इज़ राइट। 134 का ए ऑप्शन इज़ राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 135, इट सेज दैट a word with same spelling and same pronunciations as another but with a different meaning is called। क्या कहते हैं उनको जिनका मीनिंग अलग होता है और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है? सिनोनिम बोलते हैं, होमोनिम बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं या फिर होमोफोन्स बोलते हैं। तो 135 का क्या होता है? इनको होमोनिम, निम का मतलब होता है नेम, होमो का मतलब सेम, तो यानी नाम सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है, तो ये होमोनिम कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 136 इज दैट अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली अकर इन द ऑक्सिलरी वर्ब इज। तो क्या बोलेंगे इसको? पहला है कंजक्शन, दूसरा है कनेटेशन, सी इज़ कनेक्टर एंड डी इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा 136 के लिए वो हमारा डी ऑप्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 137, और क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि अदिति a visually challenged child in the class 4 does not have any text in Braille। यानी ब्रेल लिपि में ये क्या कर सकती हैं? कॉन्सेप्ट को समझ सकती हैं। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन द रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो कैसे फैसिलिटेट करेगा इंग्लिश बुक की अगर रीडिंग करनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट सी मे आस्क द प्रिंसिपल टू अरेंज अ स्पेसिफिक टीचर फॉर हर। नेक्स्ट है सी मे अरेंज एंड गिव एन ऑडियो CD ऑफ टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन सेज दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस single child she may use her energy in teaching and remaining class। now the option number D says that she may ask her parent to look after their चाइल्ड। तो ये 137 का आप जानते हैं कि क्या करेंगे? उसके लिए हम वहाँ पर ऑडियो विजुअल, यानी कि ऑडियो विजुअल नहीं हो पाता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि वो विजुअलाइज तो नहीं कर पा रही है क्योंकि वो क्या है, उसकी आंखें सही नहीं हैं, तो ब्रेल लिपि का यूज करेंगे, लेकिन वो लिखने के लिए, समझने के लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर रीडिंग करना है तो क्या करेंगे, उसको ऑडियो CD या फिर बुक की, जो हमारी टेक्स्ट बुक की, पूरी टेक्स्ट बुक की क्या करेंगे, ऑडियो CD उसको प्रोवाइड करेंगे। ये बी वाला आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 138, इट सेड दैट पोएट्री टीचिंग इज़ जनरली मीन्ड फॉर। पोएट्री टीचिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मीनिंग है? फर्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग,
पोइट्री पढ़ाने से क्या ये लैंग्वेज लर्निंग होती है, ग्रामर लर्निंग होती है, या फिर पंक्चुएशन होता है, या फिर इन्जॉयमेंट अप्रिसिएशन होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा 138 के लिए वो होगा इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 139 says that reading English as a second language means, first option says that in decoding of letter and words, second option is reading aloud, C option is says that reading for grammar, and D option says that meaning making। तो 139 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मीनिंग मेकिंग। उनके मीनिंग के सेंस को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग करते हैं या फिर सेकेंड लैंग्वेज का यूज करते हैं। दैट मीन्स आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 134 कहता है व्हेन लर्नर गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटजीज परफॉर्मेंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन सेज डैट असेसमेंट का क्वेश्चन है, और फर्स्ट ऑप्शन कहता है पीयर असेसमेंट, सेकेंड कहता है फॉर्मल असेसमेंट, सी ऑप्शन कहता है ग्रुप असेसमेंट, और डी ऑप्शन कहता है सेल्फ असेसमेंट। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर 140 का ए यानी पीयर असेसमेंट, पीयर का मतलब होता है साथ साथ, तो साथ साथ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीयर असेसमेंट इज़ द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज़ राइट फॉर 140। नाउ द क्वेश्चन नंबर 141 दैट इज़ a teacher after completing a chapter asks the students some questions to review their learning and check their understanding. The question she is asking will be based on, first option says that middle order thinking skill, second lower order thinking skill, third hyper order thinking skill, और डी ऑप्शन कहता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 142, और क्वेश्चन नंबर 142 कहता है अ गुड टीचिंग लर्निंग मटीरियल, TLM क्या कहलाता है, फर्स्ट है फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेकेंड ऑप्शन कहता है बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सी ऑप्शन कहता है हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटीरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, डी ऑप्शन कहता है हेल्प द लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज। तो गुड टीचिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है तो वो चीज़ क्या प्रोवाइड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा टीचिंग लर्निंग को, ये टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, चीज़ें उसको इजी बनाएगा। आइए चलते हैं 143 की ओर। ये कहता है 143 क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहता है वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट अ टीचर शुड नॉट, उसे क्या नहीं करना चाहिए अगर हम किसी के पेरेंट को फीडबैक दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से इज़ दैट कंपेयर द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विथ हर प्रीवियस परफॉर्मेंस, कंपेरिजन करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, नेक्स्ट है शेयर द इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन द डॉट्स और एनेक्डोट्स, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। और डी ऑप्शन कहता है कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन। तो ये हमारा 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है तो वो क्या करेंगे कि कंपेयर देयर चिल्ड्रन विथ अदर चिल्ड्रन, यानी कंपेरिजन वाला जो आंसर है वो गलत बात है। और यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट ही क्या है, गलत बात है, तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 से 150 की ओर, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पैराग्राफ को रीड करना होगा। अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वॉज दियर बेसिक सिंपलीसिटी, therefore there were innumerable scientists possessing deep knowledge of electricity, chemistry, etc., but it was this unschooled genius who succeeded where they failed. What were his unique qualities? Firstly, he had an uncanny ability to judge the practical use of any scientific fact. Secondly, he was blessed with patience and perseverance. He would try
out countless ideas till he found the right one. Third was his business acumen, which enabled him to earn the large sum of money necessary to conduct experimental work. Now, the second para says that Edison's enthusiasm for work and optimistic attitude ensured a long and productive life. Only after crossing the age of 75 did he start slowing down. During his final illness, his curiosity about his condition, medicines, and treatment, and made doctor think that possibly he was taking this too as one his scientific investigations. He passed away on 18 October 1931 at the ripe old age of 84. During his lifetime itself, Edison's became one of the most famous men in the world. Honors were showered on him. Among them was the Congregation's Gold Medal in 1928 for his contribution of human welfare. In 1960, he was posthumously elected to the Hall of Fame and Great Americans at New York University. But tribute that was most eloquent was quite unintended. The authorities contemplated switching off the power supply in New York, the scene of his triumph in 1882, for 2 minutes as a mark of respect on his death. But 1931 was not 1882, since normal life would have come to stand still by the 2 minutes power cut off. The idea was given up. There could be no greater tribute to the man that his negative tribute. आइए इस पैराग्राफ के थ्रू अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 144 says that the most remarkable feature of Edison's invention was there. First option says that multiple usefulness. Second option says that low cost, and third is aesthetic aspect, and fourth one is fundamental simplicity. तो क्वेश्चन नंबर 144 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा फंडामेंटल सिंप्लिसिटी. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 144. Now the question number 145 says that according to the author, Edison's become prosperous because first option says that made the best use of his time. Now the question नंबर 45 के लिए बी ऑप्शन है हैज़ ग्रेट बिजनेस सेंस. और नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट हैड लक ऑन हिज साइड. फोर्थ ऑप्शन इज वर्कड वेरी हार्ड. 145 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, हैड ग्रेट बिजनेस सेंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 146 इज दैट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिशंस नीडेड. क्वेश्चन नंबर 146 के लिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सेकेंड ऑप्शन सेज दैट calm and quiet atmosphere. C option is sophisticated gadget. Fourth option is support of generous patterns. तो क्वेश्चन नंबर 146 के लिए राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, एज huge amount of money. Now the question number 147 says that 147 is Edison's long and productive life can be attributed to. First option says that his involvement in the charitable work. Second says that his positive attitude, and C option says that his immensely good health, and D option says that a large circle of friends. तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा 147 के लिए दैट इज़ बी ऑप्शन, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 148. Question number 148 says that the word uncanny as used in the passage means. First option says that terrific, second is astonishing, and third is weird, and fourth option is great. तो क्वेश्चन नंबर 148 के लिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर, दैट इज़ weird. Uncanny means weird.
Now the question number 149 says that the opposite of famous का opposite क्या होगा, एंटोनिम्स बताना है। फर्स्ट ऑप्शन says that unknown, नेक्स्ट है negligible, थर्ड है unnoticeable, फोर्थ ऑप्शन इज़ unpopular। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, अननोन वाला। नाउ द क्वेश्चन नंबर 150 सेज दैट विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वे एनी साइंटिफिक फैक्ट। एनी तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट एडजेक्टिव, नेक्स्ट इज एडवर्ब, सी ऑप्शन प्रीपोजिशन, डी इज नन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको इंग्लिश का ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।